Okay, dear students, back to the hydrolysis reaction. We had seen so far hydrolysis for the salt of strong acid and strong base, and hydrolysis of strong acid, weak base. Strong acid and weak base hydrolysis we had seen where the solution is found to be acidic in nature because of presence of strong acid, and the pH was less than 7, and we call that hydrolysis as cationic hydrolysis. Now let us move to the third type of salt and its corresponding hydrolysis. Hydrolysis of salt of WASB. What does it mean? WASB, weak acid, strong base. Weak acid, strong base. An example we take for WASB. Weak acid, strong base is sodium acetate, CH3COONA. When we carry out its hydrolysis, what we see here, the formation of acetic acid, CH3COOH aqueous plus NaOH aqueous. This is what we see in the product side. So this is weak acid WA and this is a strong base SB, and that's why the salt will be WASB, salt of weak acid, strong base. As we all know, water is a weak electrolyte. So its ionization, its dissociation is not considered. What will be the next step? अभी आपको आ जाना चाहिए ionic form of this reaction. We will write ionic form of this reaction. तो ionic form में क्या लिखेंगे? Salt का तो हमेशा ionization होगा, कोई भी टाइप का salt रहने दीजिए. तो ionization काय में होगा? उसके cation और anion में होगा. तो cation क्या बना उसका? सोडियम आयन. anion क्या बना? एसीटेट आयन. Water being a weak electrolyte will remain as it is. HOH लिख लेते हैं. And now here what we see, a weak acid. Weak acid will not ionize because it get ionized, but ionization is very smaller extent, so will not dissociate. Weak acid, it is to be written as it is. तो weak acid वैसा ही ले लिया, लेकिन क्या होगा strong base का? This strong base will get ionized. It get ionized into sodium aqueous ion and hydroxyl aqueous ion. तो इसका बच्चे लोग आयोनाइजेशन लिखना कंपलसरी है. जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका आयोनाइजेशन लिखेंगे, जो वीक रहेगा उसका आयोनाइजेशन हम यहाँ कंसिडर नहीं करते, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. नाउ कैंसल कॉमन आयन फ्रॉम बोथ द साइड. तो ये सोडियम आयन कैंसल हो गए. आफ्टर कैंसलेशन और कुछ हो रहा है क्या? कैंसल नहीं जी. तो क्या बचा आफ्टर कैंसलेशन? व्हाट वी सी हियर, CH3COO-1 plus HOH with HOH. What product we get? CH3COOH. एसिड है यहाँ पर, लेकिन एसिड वीक है. प्लस क्या बचा है अभी हमारे पास? OH-1 एक्वस मीडियम में, वाटर में डिसॉल्व किया ना हमने इसे. तो यहाँ क्या देखेंगे हम? वी गेट एन एक्वस मीडियम. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है? इन्फरेंस क्या निकालेंगे आप ये इक्वेशन को देखने के बाद? व्हाट कंक्लूजन वी कैन हैव? दैट in this hydrolysis reaction of WASB, weak acid strong base, anion of the salt reacts with water giving free OH negative ion, making the solution alkaline
और बेसिक इन नेचर। तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो अल्कलाइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री OH नेगेटिव आयन, एंड हेंस दिस इज व्हाट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्योंकि हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन हमने बोला था, फिर से रिपीट करेंगे। हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन, व्हेन कैटायन और एनायन or both the ions of salt reacts with water producing acidity or alkalinity or in some cases neutrality, we call that as hydrolysis। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनायन रिएक्ट हो रहा है सॉल्ट का वाटर के साथ में, और आपको कौन सा सोल्यूशन दे रहा है, अल्कलाइन सोल्यूशन दे रहा है। अल्कलाइन सोल्यूशन क्यों बना, क्योंकि OH नेगेटिव आयन फ्री मिल गए। ये OH नेगेटिव आयन फ्री स्टेट में है, तो we will see that the solution is alkaline in nature, and what happens to the pH? pH should be greater than 7. pH is greater than 7. So this is what the hydrolysis reaction. We can also name it as anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis. Anionic hydrolysis, we can name it as anionic hydrolysis। तो ये बेटा हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले थे, तो पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन hydrolysis reaction for a salt of weak acid strong base with an example। तो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना। क्वेश्चन नंबर 2 होगा क्या, ये इसी में क्या कर देंगे, एक्सप्लेन एनायनिक हाइड्रोलिसिस। घुमा दिया क्वेश्चन को, एक्सप्लेन एनायनिक हाइड्रोलिसिस विथ एन एग्जाम्पल। हो गया एक्सप्लेन एनायनिक, यानी कौन से सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ WASB provides alkaline solution, give reason। give reason। तो ये 3 क्वेश्चन अपने इसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस, ऐसे ही इसके प्रीवियस वाले इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में आ जाएगा, और फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो क्वेश्चन मैंने बतलाया आपको कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ salts of weak acid weak base। अब ये तो बहुत ही अलग टाइप का सॉल्ट हो गया, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनियम एसीटेट, है ना। एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, ये पता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिक्स करेंगे तो बनेगा अमोनियम एसीटेट, and this is a salt of weak acid weak base। WAB react with water, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। करेक्ट। एसिटिक एसिड इज a weak acid,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अब आप इसका आयोनिक फॉर्म लिखेंगे। आयोनिक फॉर्म लिखा आपने तो सॉल्ट कोई भी रहने दो, वाटर में ऐड करने से उसका आयोनाइजेशन होगा। तो CH3COO -1 प्लस NH4 प्लस H2O, तो ये इसका एनायन हो गया, ये इसी सॉल्ट का कैटायन हो गया। दे विल रिएक्ट विथ वाटर एंड विल प्रोवाइड, अब एसिड तो वीक है तो उसका हम आयोनाइजेशन नहीं लिखते। इंटरेस्टिंगली यहाँ बेस भी वीक मिल गया हमको, तो उसका भी आयोनाइजेशन नहीं लिखेंगे, तो वीक बेस को भी वैसे ही लिख दिया। अब डेफिनेशन में फिट होता है क्या ये हाइड्रोलिसिस? दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विल कंफर्म विद द डेफिनेशन, लेट अस कंफर्म इट। तो डेफिनेशन में बोला है एनायन और कैटायन और both the ions of the salt, तो both the ions of salt reacts with water producing sometimes neutrality। अब यहां पर न्यूट्रलिटी भी पॉसिबल है। न्यूट्रलिटी कब होगी? जब वीक एसिड का Ka बराबर वीक बेस का Kb हो जाएगा, तब न्यूट्रलिटी होगी। ये Ka Kb आपको समझाया था हमने, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। इफ Ka of acid is equal to Kb of base, then solution will be neutral। तो ये एक कंडीशन होगी। बट इफ Ka is greater than Kb, तो क्या हो जाएगा? Solution will be acidic। If Ka is less than Kb, तो solution क्या हो जाएगा? अल्कलाइन या बेसिक। So this is what we see here in the case of salt of weak acid weak base। So when a salt of weak acid weak base, we see the cation as well as anion both of the salt reacts with water, can provide neutrality। न्यूट्रलिटी कब होगी? जब वीक एसिड का Ka और वीक बेस का Kb ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, देन द सॉल्यूशन विल, फाइनल सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अदरवाइज अगर Ka की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गई Kb से, तो सॉल्यूशन का नेचर होगा एसिडिक। pH should be less than 7। Ka is less than Kb, then solution becomes alkaline or basic, and pH at this time is greater than 7। तो ये होगा, और न्यूट्रलिटी में क्या मिलेगा? pH 7 मिल जाएगा। तो this is what the discussion we should remember when we see hydrolysis of salts। So there are 4 types of salts. We had seen hydrolysis of all these salts and various limitations of this salt when we carry out their hydrolysis reaction. We can have different questions on hydrolysis reaction. Okay, next time we will see something more different as a buffer solution. Buffer solution, types of buffer solution and their mechanism also. So see you in the next class.